Hi guys, so in this video I will be talking about how I made 3 lakhs from one client, so you can just copy me. And if you're looking for the proof, so this is like the proof of me charging around $3,497. तो मतलब इसको अगर तुम convert करोगे तो it's more than $3,000 only. ठीक है? I can't show these details, that is why it is blacked out. But I have charged around $3,497 from one client. And it's not like you can just charge $3,497. तुम इससे ज़्यादा भी charge कर सकते हो. ठीक है? If you know the right way of creating a high ticket offer, तुम इससे ज़्यादा भी charge कर सकते हो. ठीक है? And not only me, even my students have earned around this much from a single client. So like this is Swaraj Ankit. He closed a client for like $3,750 by becoming a growth navigator. So this is what I basically teach people on how to become a growth navigator so that they can sell, so that they can charge high ticket fee from their clients. Okay? Not only Swaraj, there is Tanish. So he closed a client for $3,000 and he collected $1,400 as on a split payment. So he closed the client for $3,000 and collected around $1,380. So this is like a split payment. Okay? So now if you want to know like how to charge high ticket, you first know what is the difference between a low ticket offer and a high ticket offer, and why some of the people are able to charge around $3,500 or like almost around $4,300, $750, $6,000 and around this much of charge, and और तुम लोग क्यों नहीं इतना charge कर पाते, and why only few people are able to charge this much of high ticket and clients are also ready to give this much amount, or and clients are also ready to give this much of amount. ठीक है? So इसी के बारे में बात करेंगे. So in the digital service world, most of you are selling like a low ticket offer. And how you are selling like a low ticket offer, वही मैं डिस्कस करता हूँ. तो लो टिकट ऑफर क्या होता है? सपोज यू हैव अ स्किल ऑफ पेड एड्स. ठीक है? और सपोज यू हैव अ स्किल ऑफ वीडियो एडिटिंग. सपोज यू हैव अ स्किल ऑफ writing good copy, so you are good at copywriting. Or suppose you have a skill of creating amazing websites, but the reason why you aren't able to charge high ticket because you just have this as a service or this as a offer. ठीक है? तो होता क्या है कि क्लाइंट की नीड्स होती है, ठीक है, क्लाइंट की प्रॉब्लम्स होती है, और जो तुम्हारी सर्विस है वो एज अ सोल्यूशन की तरह काम करती है. ठीक है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी बिजनेस के साथ तुम काम कर रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है क्लाइंट की, कि वो रेवेन्यू ग्रो करे या उसको सेल्स हो. ठीक है? बट अगर तुम सिर्फ पेड एड्स की सर्विस दे रहे हो, सिर्फ तुम वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहे हो, अगर तुम सिर्फ कॉपी राइटिंग वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हो, देन यू आर ओनली फिलिंग दिस मच ऑफ गैप. एंड क्लाइंट्स को अगर रेवेन्यू अर्न करना है, सो यू नीड टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ऑफर जो कि ये पूरा गैप फिल करे. ठीक है? सो दिस इज अ क्लाइंट्स करंट सिचुएशन, और तुम्हारे क्लाइंट की एक आइडियल सिचुएशन होगी, और तुम्हारा ऑफर इज द bridge to your offer is like a bridge which will help your clients to reach to their ideal situation from their current situation. ठीक है? और अगर तुम्हारा ऑफर सिर्फ पेड एड्स है, या अगर तुम्हारा ऑफर सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग है या सिर्फ वीडियो एडिटिंग है, तो क्या तुम्हारा क्लाइंट अपने करंट सिचुएशन से अपने आइडियल सिचुएशन तक पहुंच पाएगा? एंड द आंसर इज क्लियरली नो, नहीं पहुंच पाएगा. क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि उसको अगर तुम सिर्फ सपोज वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहे हो, then what you are actually solving is the his content part, but you aren't ensuring him any kind of sales or revenue growth. ठीक है? जब तक तुम क्लाइंट को रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दे सकते, तब तक तुम उनसे हाई टिकट चार्ज कर ही नहीं पाओगे. ठीक है? एंड ऑल्सो देर आर एक्सेप्शंस, देर आर वीडियो एडिटर्स हु चार्ज अ लॉट ऑफ फी, बट बिकॉज ऑफ द स्किल, that is also just 1 to 2% of people who are very good at video editing and who can actually charge a high ticket fee for this, for their video editing service or like any kind of service. But most of the people are like not that good. Even if they are 7 out of 10 on their skills, still also they can't charge high ticket because there are a lot of people who are at the 7 out of 10. जो मैं एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ, those people are around 10 out of 10 or 9.5, 9 out of 10 on their skills, whether it's video editing, paid ads or anything. But most of the people are
around 7 or 8 out of 10. तो होता क्या है कि like when you are having a skill of video editing or when you are just having a skill of paid ads, तो तुम्हारा जो skill है is limited, ठीक है? And it's not just about limited, but there are a lot of people who can replicate you providing that same kind of quality in cheaper prices, ठीक है? अब suppose तुम सिर्फ paid ads की तुम्हारी skill है, तो for your client there are thousands of people on places like Fiverr, Upwork, freelancer.com who can provide that same service on a cheaper price. तो तुम in a way उनके साथ compete कर रहे हो. So how will you be able to charge high ticket अगर वही same service कोई Fiverr, Upwork में तुमसे सस्ते में कर देगा? Same goes for video editing. अगर तुम्हारे से अगर कोई वीडियो एडिटर तुम एज ए Fiverr, Upwork में देखो तो लिटरली 500 रुपये से, 1000 रुपये से, 200 रुपये, 300 रुपये से काम करने में के लिए लोग रेडी है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि लाइक उनकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी क्वालिटी बेकार है, बट देयर आर ऑप्शंस. ऑब्वियसली जिस प्राइस में तुम भी सेल कर रहे हो उस प्राइस में भी तुम्हारे क्लाइंट के पास और ऑप्शंस है लोगों को हायर करने का जो कि तुमसे सस्ते में कर दे वही सेम क्वालिटी ऑफ वर्क, बिकॉज दीज आर कोमोडोटाइज सर्विस. सेम गोज फॉर वेबसाइट डिज़ाइनिंग. वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले बथेरों लोग हैं, तो तुम उनसे अपने आप को यूनिक कैसे करोगे? सो दैट इज़ वेयर you need to create a high ticket offer, and now we will look into a high ticket offer. A high ticket offer is usually what we provide like an end to end solution. ठीक है? So end to end solution कैसे provide करता है एक high ticket offer? तो high ticket offer में क्या होता है? ये again your client's ideal situation is this and his your client's current situation is this and his ideal situation is this, and this is the gap you need to fill with your offer. ठीक है? So if you provide an end-to-end solution to your clients, you can obviously charge high ticket fee for your service. Something like how Swaraj Ankit did, something like how Tanish did. So obviously you could charge high ticket fee if you have an end-to-end solutions for your offer. If you have an end-to-end solution and which can actually help your client reach from their current state टू देयर आइडियल स्टेट. ठीक है? तो ये करंट स्टेट यूजुअली क्लाइंट्स के लिए होता है अ रेवेन्यू ग्रोथ. अगर क्लाइंट अभी $10,000 कमा रहा है और तुम उसको $50,000 कमा के दे सकते हो तो तुम इजीली उसको $5,000 चार्ज कर सकते हो अपनी सर्विस के लिए. इस तरीके से सोचो. ठीक है? बिकॉज यू आर इन सेलिंग अ कोमोडोटाइज सर्विस. नाउ यू आर सेलिंग एन ऑफर और अ सोल्यूशन which is end to end and which solves all the problems your client is facing in his business, and that way he can grow his revenue. ठीक है? So अब तुम सोचोगे end to end solution create कैसे करते हैं? To create an end to end solution you need to have this, you need to implement a whole sales process in your client's business. So this is like a whole sales process. ठीक है? So there are 3 things which you must need to solve for your clients if you want to charge high ticket, which is leads, अपॉइंटमेंट्स, सेल्स. ठीक है? अगर तुम ये तीनों चीज़ें सॉल्व कर रहे हो अपने क्लाइंट्स के लिए देन यू कैन चार्ज अ हाई टिकट फी फॉर योर सर्विस. ठीक है? सो लीड्स कैसे? लीड्स के लिए लाइक देयर आर मल्टीपल वेज. एज आई सेड, कंटेंट मार्केटिंग. अगर तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो अपने क्लाइंट्स के लिए और वीडियो एडिटिंग इस बेसिस में कर रहे हो, अगर तुम्हें स्किल पता है कि किस टाइप की वीडियोज़ एडिट करने से तुम्हारे क्लाइंट्स को लीड्स आएंगी या किस टाइप के एड्स रन करने से तुम्हारे क्लाइंट्स को लीड्स आएंगी, तुम्हें अगर इस चीज़ का आइडिया है, तुम कोई भी स्किल कर रहे हो, कॉपी राइटिंग कर रहे हो, तुम्हें अगर आइडिया है कि किस तरीके से कॉपी राइटिंग यूज़ करके तुम अपने क्लाइंट्स को ग्रो कर सकते हो. ठीक है? अगर तुम्हें वो सारी पता है चीज़ें, वो सारी स्किल्स है, देन यू कैन फुलफिल द लीड सोल्यूशन पार्ट. फिर तुम्हें अपॉइंटमेंट्स का भी सोल्यूशन करना है कि चलो सपोज तुम्हारी कोमोडोटाइज सर्विस जैसे पेड आर्ट्स की थी. अब तुम पेड आर्ट्स रन करके लीड्स तो ले आओगे, बट उस लीड से अपॉइंटमेंट्स कैसे बुक जनरेट करोगे और उस अपॉइंटमेंट से इवेंचुअली सेल्स कैसे कन्वर्ट करोगे. ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट अ ग्रोथ नेविगेटर डज. ठीक है? तो जो ये ग्रोथ नेविगेटर मेथड के बारे में मैं बात करता हूँ, दिस इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल एजेंसी जो कि तुम यूजुअली ये वाली होती है जिसमें तुम लो टिकट सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हो एंड स्केल नहीं कर पाते अपनी एजेंसी. ठीक है? A growth navigator handles all 3 things: leads, appointments and sales. हाँ, ये हो सकता है कि वो उसको वीडियो एडिटिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो तो वो
वीडियो एडिटिंग करे, बट वो वीडियो एडिटिंग के साथ ऐसी भी चीज़ें क्रिएट करेगा अपने बिजनेस में जिससे कि वो सेल्स भी कन्वर्ट कर सके अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, अगर वो वीडियो एडिटिंग कर रहा है तो उसके साथ वो कुछ ऐसे भी मैकेनिज्म्स क्रिएट करेगा या ऐसा भी कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा जिससे कि वो वीडियो एडिटिंग से जो व्यूअर्स आए वो लीड्स में कन्वर्ट हो, और वो लीड्स सेल्स में कन्वर्ट हो, और वो लीड्स अपॉइंटमेंट्स में कन्वर्ट हो, और वो अपॉइंटमेंट सेल्स में कन्वर्ट हो। सेम गोज फॉर अ वेबसाइट डिजाइनर। वो कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहा है और उसको इस ग्रोथ नेविगेटर मेथड की तरह उसको एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करना और हाई टिकट ऑफर क्रिएट करना है, तो वो वेबसाइट डिज़ाइन तो करेगा इन हाउस, पर वो और भी चीज़ें अपने उसमें ऐड करेगा जिससे कि वो वेबसाइट पे लोग आए, विच कुड बी रनिंग एड्स और क्रिएटिंग कंटेंट और कुछ भी करके वो लोगों को वेबसाइट पे लाए और वेबसाइट से कन्वर्जन हो और सेल्स हो। ठीक है, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोवाइडिंग लीड्स, it is about providing a whole sales process which consists of leads, appointments and sales. So this is the thing, and it is not necessary कि ये तीनों चीज़ें तुम खुद सॉल्व करो। ठीक है, सपोज तुम्हारे को स्किल्स है वीडियो एडिटिंग की, तो वीडियो एडिटिंग की चीज़ तुम इन हाउस करो एंड क्रिएट of infrastructure or create a infrastructure or create a systems to solve other things as well, which is leads, appointments and sales. ठीक है, तुम कुछ चीज़ें जो तुम्हारी मेन जो स्किल है उसको इन हाउस रख सकते हो, बट यू नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल्स विच इज लीड्स, अपॉइंटमेंट्स एंड सेल्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू चार्ज हाई टिकट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो तुम वीडियो एडिटिंग इन हाउस करो। ठीक है, तुम बोल सकते हो अपने क्लाइंट्स को कि मैं एडिटिंग करूँगा, बट उसके साथ यू शुड हैव अ नॉलेज एंड यू शुड नो हाउ टू क्रिएट फनल्स विच कैन हेल्प योर क्लाइंट्स get leads, appointments and sales out of the videos which you will create for them. ठीक है, सो इसका एग्जांपल है कि लाइक जब मैं पहले कंटेंट एजेंसी रन कर रहा था, अभी मैं एक ग्रोथ नेविगेटर मेथड से पूरा इंटायर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, बट जब मैं पहले कंटेंट एजेंसी रन कर रहा था, तो मैं उसके बाद जब मैं ग्रोथ नेविगेटर में स्विच हुआ था, तो मैं सिर्फ वीडियो एडिट नहीं कर रहा था। व्हाट आई वुड यूज टू डू इज आई वुड यूज टू एडिट वीडियोस, एंड उस वीडियोस में जो व्यूज़ आते थे उसको मैं लीड्स और अपॉइंटमेंट्स पे कन्वर्ट करने के लिए आई वुड यूज़ टू प्लेस एन अपॉइंटमेंट सेटर और अ वर्चुअल असिस्टेंट जो कि उन लीड्स से या उन व्यूअर्स जो भी लोग उस मेरे क्लाइंट की वीडियोस को लाइक कर रहे हैं उससे जाके बात करता था, एंड इवेंचुअली दैट पर्सन यूज्ड टू डीएम ऑल दोस पीपल जो भी मेरे क्लाइंट की वीडियोस जो मैंने एडिट करी है उसके साथ इंगेज हो रहे हैं, उनको जाके डीएम करता था ये अपॉइंटमेंट सेटर और वर्चुअल असिस्टेंट, और वहाँ से वो सेल्स कन्वर्ट करता था, और वहाँ से वो डीएम करके उनके क्लाइंट के लिए सेल्स कन्वर्ट करता था। ठीक है, दिस इज़ वन एग्जाम्पल। सेम गोज फॉर पेड एड्स। तो पेड एड्स रन कर रहे हो तुम, पेड एड्स से जो लीड्स आई उसको लीड्स को हैंडल करने के लिए तुम उनके बिजनेस में एक अपॉइंटमेंट सेटर या बहुत तरीके हैं जिससे तुम उस लीड्स को अपॉइंटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई टीच इन माई ग्रोथ नेविगेटर प्रोग्राम। इट इज़ लाइक अ वन-on-one कंसल्टिंग प्रोग्राम। अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, यू कैन जस्ट गो एंड बुक अ कॉल फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बट दैट इज़ व्हाट आई यूज टू डू, एंड दैट इज़ व्हाट लाइक यू नीड टू डू अगर तुम पेड एड्स रन कर रहे हो। कि अगर तुम पेड एड्स रन करके लीड्स जनरेट कर रहे हो और उस लीड्स को अपॉइंटमेंट्स में कन्वर्ट करके सेल्स में लाने का, कन्वर्ट करने का तुम्हारे पास पूरा मैकेनिज्म है, देन यू कैन चार्ज हाई टिकट। ओके, सो ऑलवेज गो फॉर एन एंड टू एंड सोल्यूशन, एंड तुम ये चीज़ें कपल ऑफ तरीके से कर सकते हो। आइदर थ्रू योर नॉलेज यू कैन create funnels which can help your clients get leads, appointment, sales, or either you can place some talents who can convert the attention into leads, appointments and sales. ठीक है, तो अगर talents कैसे हो गए, जैसे मैंने अभी appointment setter की बात करी, so that is a talent you can place in your client's business जिसकी वजह से a client can convert those leads into appointments and eventually into sales. So ज़रूरी नहीं है कि हमेशा talents की ज़रूरत पड़े, you can implement funnels which can help your clients get leads and then turn those leads into appointments and appointments into sales. ठीक है, तो तुम्हारी नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे, जो तुम्हारी जो स्किल है, मेन स्किल है, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, एड्स, फेसबुक एड्स रन करना हो, गूगल एड्स रन करना हो, वीडियो एडिटिंग हो, वेबसाइट डिजाइनिंग हो, तो तुम्हें उसके अराउंड ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि अगर अच्छा मैं वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं वेबसाइट से अपने क्लाइंट्स को बिजनेस में कैसे ग्रोथ कर सकता हूँ और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ आउटसोर्स करके या टैलेंट्स प्लेस करके, जिससे कि मैं एक एंड टू एंड सोल्यूशन क्रिएट कर सकूँ।
एंड आउटसोर्स भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा करना होता है, आउटसोर्स की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि किस टाइप के लोगों को मेरे क्लाइंट्स को ज़रूरत होगी जिससे कि उसको लीड्स अपॉइंटमेंट सेल्स मिले, किस टाइप के फनल्स की मेरे क्लाइंट को ज़रूरत होगी जिससे मेरे क्लाइंट को लीड्स अपॉइंटमेंट्स और सेल्स मिले. You should have the knowledge about creating the entire system which can help your clients reach from their current situation to their ideal situation. ठीक है? Now it's all about how to find clients. ठीक है? So you need to use all forms of leverage when it comes to finding clients for your business. ठीक है? So what are the 4 kinds of leverage? So ये चीज़ Naval Ravikant talks about a lot of times. You can read his book, The Almanac of Naval Ravikant. ठीक है? So there are 4 kinds of leverage: labor, media, capital, and code. So you can use 4 kinds of leverages to actually attract clients. ठीक है? Or actually how to find clients, you could use 4 leverages. ठीक है? One is labor. Labor is when you are doing cold outreach, when you are reaching out to your clients on social media like Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, cold email. So you are using these methods so that you could reach out to your prospects and close them on your high ticket service. ठीक है? So there are a couple of things which you need to do. This is like a labor leverage. You could use labor or you could have some people who can do outreach for you. ठीक है? ऐसे मतलब VAs और appointment setters को use करके अब if you are like using VA appointment setters who can do outreach for you, then you are doing the labor leverage. कि तुम labor को use करके outreach कर रहे हो mass में and you are finding clients. So I would highly suggest कि तुम अगर labor leverage use कर रहे हो या तुम cold outreach कर रहे हो, then you should at least reach out to 500 plus people every single day. Means sending 500 plus messages every single day. ठीक है? Then you need to DM them. Then you need to also create a lead magnet or evergreen VSL, or you should have case studies, something so that you could build trust from your clients and educate them about your services, and then you will eventually book a call. तो तुम्हें डायरेक्ट डीएम करके सेल नहीं करना, तुम्हें उनको डीएम करके उनको अपने किसी लीड मैग्नेट में, अपने किसी VSL वीडियो में या अपने केस स्टडीज इन सारी जगह पे भेजना है जहाँ से तुम्हारे क्लाइंट्स और एजुकेट होंगे तुम्हारी सर्विसेज के बारे में, एंड then you will be able to sell them. So always use this method कि first collect the first grab their attention, then educate them and then sell them instead of directly selling them. अगर तुम डायरेक्टली सेल करने जाओगे तो बहुत सारे लोग तुम्हें मना कर देंगे, चाहे तुम्हारा हाई टिकट ऑफर हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो. एंड ऑलवेज ट्रैक कि तुम कितने लोगों को मैसेजेस भेज रहे हो, कितने लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितने लोग पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ठीक है? कितने कॉल्स बुक हो रहे हैं. यू शुड हैव द डेटा ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. एंड अगर तुम्हें ट्रैकिंग शीट चाहिए तो जस्ट जॉइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी, देयर आई प्रोवाइड दिस फॉर फ्री. Okay, now the second is the media leverage. So as now we have discussed about labor leverage, now we will discuss about the media leverage. So media leverage का मतलब है creating content. Labor leverage में हमने discuss करा कि how you could use labor like appointment setters and virtual assistants. तुम लोगों को hire कर सकते हो या लोगों को outsource कर सकते हो जो तुम्हारे लिए outreach करे या DM करे तुम्हारे prospects को on the social media platforms. ठीक है? Now it's about the media leverage. तो media leverage is talking about the content funnel, how you could create Instagram content and YouTube content, and from there you could convert clients and book calls for your agency or whatever type of digital service you provide. ठीक है? So this is like an Instagram में तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डाल सकते हो, और उस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में जो CTA हो सकती है रील में, उसमें तुम दे सकते हो कि जाके कॉल बुक करने. एक्चुअल में एक सेटर प्लेस कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे, जो कि तुम्हारे को जो भी इंगेजमेंट आ रही है तुम्हारे कंटेंट में, जो भी लोग तुम्हारे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उससे जाके ये सेटर बात करे और कॉल बुक करे. फिर लीड मैग्नेट्स क्रिएट कर सकते हो. लाइक you could provide a free you can provide them something for free, like a free lead magnet, free guide on how to like अगर तुम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो फ्री गाइड ऑन हाउ टू क्रिएट अमेजिंग वेबसाइट्स, हाउ टू क्रिएट अमेजिंग वेबसाइट्स. तो ऐसे करके तुम फ्री लीड मैग्नेट्स दे सकते हो जिससे कि लोग तुम्हारे ऊपर और ट्रस्ट करेंगे एंड इवेंचुअली दे विल बुक अ कॉल. ठीक है? और एक और चीज़ मैं इंस्टाग्राम पे यूज़ करता हूँ कि आई क्रिएट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट
and through that short form content I direct everyone to my long form content which is YouTube. तो YouTube पे लोग जाते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं एंड इवेंचुअली बुक अ कॉल, या YouTube से मैं लोगों को अपने कम्युनिटी पे भेजता हूँ और वहाँ पे से लोग और नर्चर होते हैं और एजुकेट होते हैं मेरे सर्विस के बारे में एंड दे बुक अ कॉल. So you need to use these leverages so that you can get clients on a regular basis. Next is capital. So capital होता है when you run ads. Why we call this capital and leverage? क्योंकि तुम capital का use कर रहे हो, you are using money to get clients. तुम $1 invest करते हो ads में और $2 कमाते हो. So this is like a using capital leverage, using capital to get more capital. ठीक है? So this is like the funnel which you need to use if you are running paid ads. Although we aren't running the paid ads, but for some of the students whom we are running the paid ads, या जिनको हम help कर रहे हैं paid ads से clients ढूंढने में, so this funnel we are using for them. कि हम paid ads run करते हैं, then Optin is collecting the interested people's email and phone number. मतलब सपोज अगर तुम्हारी एजेंसी है या तुम कोई भी टाइप का डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो तुम उसके अराउंड एड्स रन करोगे. फिर एड्स रन करके जो भी लोग तुम्हारी सर्विस लेने में इंटरेस्टेड है उन लोगों की ईमेल्स, आईडीज और फ़ोन नंबर्स कलेक्ट करोगे. फिर उनको अपने VSL में भेजोगे. VSL इज़ लाइक अ वीडियो सेल्स लेटर. ठीक है, तो VSL इज़ लाइक द यूट्यूब वीडियोज़ विच यू क्रिएट अबाउट योर सर्विसेज और योर ऑफर, इंस्टाग्राम content which you create around your services. So those are like the VSLs. ठीक है, तो तुम एक बार उनकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर कलेक्ट कर लिए तो तुम उनको अपने एक VSL पे भेजोगे. अ VSL will be a video which is meant to convert or which is used for selling your services. जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो, this video is a VSL because this video is used to educate you guys, and eventually if anyone is interested they will book a call for the one-on-one coaching. So this is like a VSL, and once they watch the VSL, then you could redirect them to a group or your other content assets, and from there you could sell them. Okay, so you need to create a one VSL जो कि तुम्हारी सर्विसेज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, एंड उस VSL को यूज करके you can educate your prospects before they are coming on a call with you. और जब वो तुम्हारी वीडियो देख के कॉल पे आएंगे then it will be more easy for you to convert them for your service. ठीक है, then इसमें एक और चीज़ होती है कि वंस यू आर रनिंग पेड एड्स एंड जब तुमने उनकी ईमेल और फ़ोन नंबर कलेक्ट कर लिए एंड वो उनको VSL दिखा दिया और उनको और कंटेंट एसेट्स दिखा दिया एंड तब भी वो कॉल बुक ना करे, बट यू कुड स्टिल हैव देयर अटेंशन बिकॉज तुम्हारे पास अब उनका ईमेल और फ़ोन नंबर कलेक्ट हो गया है. तुम उनको पीछे बैकएंड में SMS और ईमेल सीक्वेंसेस भेज सकते हो जिससे कि तुम उनको और एजुकेट करो अपने सर्विस के बारे में, और वहाँ से भी अगर वो ईमेल सीक्वेंसेस और SMS के सीक्वेंस से नर्चर होंगे और इवेंचुअली वो कॉल बुक करेंगे. सो दिस इज द होल पेड एड्स फनल. नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट फॉर्म ऑफ लेवरेज जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, मैंने बात नहीं करा, इज द कोड. कोड इज बेसिकली यूजिंग द ऑटोमेशंस. तो ऑटोमेशंस हर टाइप के लेवरेज में काम आ सकते हैं. लेबल लेवरेज में you could use automations की like instead of using appointment setters you can have some kind of automation which is allowing you to outreach to all these people without you using any person. वो automation से सारे messages send हो रहे हैं. like cold email के लिए there are lot of softwares जो automated emails भेज सकते हैं even for Instagram, Facebook. so automations use करके तुम कोड या ऑटोमेशन का लेवरेज लेके तुम ये तीनों चीज़ों में यूज़ करके इन तीनों को एम्पलीफाई कर सकते हो. ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेबल लेवरेज टू डू कोल्ड आउटरीच यू कैन यूज़ ऑटोमेशंस जो कि तुम्हारे लिए अपने आप आउटरीच करे. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आते हैं विच कैन ऑटोमेट योर कोल्ड आउटरीच. ठीक है, सो ये हो गया. मीडिया में यू कैन यूज़ ऑटोमेशंस टू जनरेट कॉन्टेंट आइडियाज़ लाइक फ्रॉम ChatGPT एंड ऑल दीज प्लेसेस. तुम यहाँ से कंटेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हो. देन कैपिटल लेवरेज में यू कुड यूज ऑटोमेशंस टू क्रिएट दीज ईमेल सीक्वेंसेस, SMS सीक्वेंसेस, क्रिएटिंग दिस होल फनल. उसके लिए ऑटोमेशन यूज हो सकते हैं. ठीक है, सो ऑटोमेशन कैन बी यूज्ड इन ऑल काइंड ऑफ लेवरेज. व्हाई ऑटोमेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लेवरेज, व्हाई नवल रविकांत सेज कि ऑटोमेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लेवरेज, क्योंकि ये तुम्हारी जो तीनों एग्जिस्टिंग लेवरेज है इसको ऑटोमेशन एम्पलीफाई कर देता है. Okay, now we will talk about the process of selling. ठीक है,
मैंने पहले ही बता दिया है कि तुम्हें ऐसे डायरेक्ट सेल नहीं करना, कि ऐसा नहीं है कि तुमने सीधा आउटरीच करा और तुम उनको डायरेक्ट सेल करने में लगे हो और कॉल बुक करने में लगे हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी हाई टिकट सर्विस लोग खरीद ले। ऐसे नहीं होता। यू नीड टू फर्स्ट ग्रैब अटेंशन। तो ग्रैब अटेंशन के लिए तुम, यू कुड डू मल्टीपल थिंग्स। यू कुड आइदर क्रिएट कॉन्टेंट लाइक आई क्रिएट, सो दीज आर व्हाट वी कॉल लाइक द कॉन्टेंट एसेट्स। सो इससे तुम अटेंशन गेन कर सकते हो। देन देयर इज क्रिएटिंग रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट टू ग्रैब अटेंशन, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो डू आउटरीच। मैं अभी हाल फिलहाल में कर नहीं रहा हूँ बिकॉज आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इनबाउंड लीड्स, बट you can also do outreach. So these are the ways of grabbing the attention of your prospects, ठीक है। creating YouTube videos, creating content on Instagram, doing the outreach, all these are the ways of grabbing the attention of your prospects. But now you also need to own the attention, ठीक है। So once you have their attention, तुम्हें उनकी attention own करनी बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हारे prospects nurture नहीं होंगे, ठीक है। So how you own their attention? You can send them to a free community. Like you can create a free community. वहाँ पे तुम उनको भेज के nurture कर सकते हो. A lot of times people also collect emails, जैसे मैंने अभी paid ads में दिखाया, to own the attention of the prospects who are interested. तुमने उनके लिए उनके ईमेल और फ़ोन नंबर्स कलेक्ट कर लिए, क्योंकि तुमने बहुत बार देखा होगा कि जब भी तुम कोई ऐड देखते हो तो तुम उस पर क्लिक करते हो तो वो तुम्हारे फ़ोन नंबर्स और ईमेल्स कलेक्ट कर लेता है। उससे क्या होता है कि फिर वो बैकएंड में तुम्हें ईमेल सीक्वेंसेस और एसएमएस सीक्वेंसेस भेजता है, जिससे कि अगर तुम उसके बाद नहीं भी कन्वर्ट हुए तो बैकएंड में उनके पास तुम्हारा ईमेल और नंबर है, जिससे वो तुम्हारे साथ फॉलोअप कर सकते हैं और तुम्हें ओवर द टाइम, शायद अभी नहीं खरीदोगे पर जैसे जैसे तुम्हें उनकी ईमेल सीक्वेंसेस और एसएमएस सीक्वेंसेस रेगुलर बेसिस में मिलते रहेंगे तो शायद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद तुम उनके क्लाइंट बनोगे, ठीक है। सो यू नीड टू ओन दी अटेंशन, ठीक है। तभी इसलिए मैं अपने वीडियोस के थ्रू आई सेंड ऑल द पीपल टू अ फ्री कम्युनिटी जहाँ पे आई प्रोवाइड मोर वैल्यू, ठीक है। इफ एनी वन इज नॉट इंटरेस्टेड, if anyone is not ready to buy right now, they can join the free community, and once they are in my community I can nurture them, ठीक है। now I have their attention, I have owned their attention, ठीक है। and then once you have owned their attention, now you can educate them more about your services through your videos, through talking to them one on one, क्योंकि अब तुम्हारे पास जब उनका इन्फॉर्मेशन आ गया, तुम्हारे पास उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया, या तुम्हारे वो कम्युनिटी में आ गए, या तुम्हारे पास उनकी ईमेल आ गई, फ़ोन नंबर आ गया, तो तुम उनको डायरेक्टली रीच आउट करके उनको और एजुकेट करो अपने सर्विसेज पे, ठीक है। सो इवेंचुअली दे विल बाय फ्रॉम यू। मेक सेंस? सो यू नीड टू फर्स्ट grab their attention, own the attention, and then educate them on your services through your videos or through your content assets, and then sell them. And those of you are thinking कि media leverage और मैं content नहीं create करूँगा, मैं ऐसे मुझे client मिल जाए, then trust me, it's gonna be very hard for you to get clients. You need to create content. You need to use media leverage. ठीक है। जो तुम्हारे favorite gurus है, everyone create content, जिनसे भी तुम सीखते हो कि वीडियो एडिटिंग, कंटेंट एडिटिंग, वो सारे लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, बिकॉज थ्रू कंटेंट यू कैन गेन अटेंशन इन मास। वाई कंटेंट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यू कैन सी दीज वीडियोज, some videos I've got 130 views, 103 views. This reel has done quite well for me. It got more than 1,000 views, which is not a lot, but according to my followers, it's a good ratio. ठीक है। तो क्या होता है कि अब तुम्हें सोचो कि तुम्हें इसमें 100 व्यूज़ आए, 1,000 लोगों ने तुम्हारी रील देखी, एंड जस्ट इमेजिन कि अगर तुम्हें 1,000 लोगों का अटेंशन कोल्ड आउटरीच से गेन करना होता, तो सोचो तुम्हें कितने लोगों को रीच आउट करना होता हर दिन में। एंड हेयर यू जस्ट क्रिएट कंटेंट एंड यू गेन अटेंशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। दैट इज़ द मैजिक ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, एंड ऑलवेज हैव देयर अटेंशन, देन ओन देयर अटेंशन, देन एजुकेट देम, एंड देन सेल देम ऑन योर सर्विसेज। So that was it for this video. If you like this video, then make sure to like, share, and also subscribe. And if you want me to help you charge high ticket from your clients, okay? And if you want me to help you in becoming a growth navigator who can sell their services for like 3 lakhs and even more than that, just like some of my students are doing, then you can just book a call. And also, if you need these kinds of lead magnets, and if you need more value, more content,
then just join my free community. That is it for this video. I'll see you in the next one.